ملک دیکھنا چاہتی ہے. اور میں آج آپ کو اپنی طرف سے، یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے، مریم اورنگزیب کی طرف سے، یہ سب کھڑے ہیں دائیں اور بائیں، ہم سب آپ کو مبارکباد کہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے. الحمدللہ. Muslim League Noon is the largest single party in the country today after the elections. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ اس ملک کو بھنور سے نکالا جائے. ہمارے پاس اور ہم اب ہم انشاءاللہ نہیں، یہ بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہے، ابھی سنجیدہ بات ہو رہی ہے، نعرے بازی ابھی نہیں، ابھی کوئی نعرے بازی نہیں. آپ کا قائد کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی نعرے بازی نہیں. پہلے میری بات سنیں، پھر نعرے بازی بعد میں کریں گے. تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کو بھنور سے نکالنے کی تدبیر کریں. ہم نے پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ملک کو مشکلات سے نکالا ہے اور آج بھی نکالنے کا اہتمام کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، جن کو بھی مینڈیٹ ملا ہے ہم دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں، چاہے وہ پارٹی ہے، چاہے وہ فرد واحد ہے، چاہے وہ آزاد لوگ ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو. ہم صرف اور ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ایک خوشحال پاکستان ہے، جو ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کس نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. ہم نے کون کون سے منصوبے بنائے آپ کو معلوم ہے. ہم نے کس طرح سے پاکستان کو فائنینشل مشکلات سے نکالا، کس طرح سے معیشت کو ٹھیک کیا وہ آپ کو معلوم ہے. پاکستان کس طرح سے خوشحال ہوتا چلا جا رہا تھا وہ آپ کو معلوم ہے. پاکستان کی کون کون سی دفاعی صلاحیت کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے لیے اپنا کردار انجام دیا وہ آپ کو معلوم ہے. ہم نے چاہے وہ معاشی ہے، چاہے وہ پاکستان کا دفاعی ہے، پاکستان کی معاشرتی نظام ہے، اور پاکستان کا کوئی جو ہے وہ معاشی اور معاشرتی سب کے بارے میں نہ صرف کہ ہم نے اس کے لیے کام کیا، اپنی بھرپور خدمت کی ہے. اور یہ ریکارڈ ہے ہمارا. میں آج آپ سے اپنے ریکارڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کوئی زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں، اور آج ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں. آج پاکستان یہ مینڈیٹ ملا ہے، یہ بار بار ہم متحمل نہیں ہو سکتے. بھائی نہیں، پھر نعرے بازی کر رہے ہیں آپ. بار بار اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ملک کے انتخابات کروائیں. یہ میں کل یہاں پہ آیا ہوا تھا، کل یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سب آئے ہوئے تھے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن نتائج ابھی آ رہے تھے، مکمل نتائج آئے نہیں. ورنہ کل ہی بات کرنے کا ارادہ تھا. تو اس وقت تو بات اس لیے نہیں کی کہ ابھی نتائج بہت کم آئے ہوئے تھے، اور یہاں پر 10%، 12% نتائج ابھی آئے تھے. لوگوں نے اپنے رائے قائم کرنی شروع کر دی. ایسے تو نہیں ہوتا نا، اور ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی، ایسے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس ملک کے اندر
सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, मीडिया सब मिलकर अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। ये सिर्फ इसहाक डार की या शहबाज शरीफ साहब की या मेरी या इनकी सबकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है भाई, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। ये सबका पाकिस्तान है, ये सिर्फ अकेला मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान नहीं है, सबका पाकिस्तान है। सबको मिलके हार्मनी में जानते हैं आप, सारा हार्मनी में बैठ के इस मुल्क को बाहर निकालना चाहिए मुश्किलात से, तभी पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा। भाई मैंने देखा ना, ये डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, नहीं नारेबाजी नहीं करें अभी आप, मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूं, सिर्फ बात सुन लें। तो भाई आपकी जिंदगियों का सवाल है, इन बच्चों के मुस्तकबिल की जिंदगियों का सवाल है, इन छोटे छोटे बच्चों की या आइंदा मुस्तकबिल का सवाल है। ये कोई हमें इसको कोई ये ऑर्डनरी बात नहीं है, बड़ा सीरियसली हमें इन चीजों को लेना चाहिए और इस कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, हमें कौम की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। तो आपको बता रहा हूं, इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। और मैं समझता हूं कि जो लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपने जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलों को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। जो पाकिस्तान आज शायद दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता, लेकिन अपनी कोताहियों की वजह से हमने वो मकाम हासिल नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूं, वो मोमेंटम जो हमने बनाया था 1990 में, जब मैं पहली दफा वज़ीर-ए-आज़म बना था, अगर वो मोमेंटम कायम रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत बड़ी ताकत होती। और फिर बीच में हमने न्यूक्लियर का जब टेस्ट किया, न्यूक्लियर पावर बने, वो तो अल्लाह ताला की खास रहमत हुई थी उस जमाने में कि पाकिस्तान, लोग कहते हैं इक़्तिसादी तौर पे भी इतना मजबूत है और दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत है। आज भी आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। लेकिन हम इसका जिक्र नहीं करना चाहते। हम अपनी खिदमत आपको पता है, हम गिनवाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की क्या खिदमत है। आपके सामने मैं खड़ा हूं, ये देखो 1990 से लेके आज तक का रिकॉर्ड मंगवा लें, आप देख लें, आप टेलीविजन पे देख लें, अखबारों में पढ़ लें, आप देख लें कि हमारी खिदमत क्या है। और फिर मैं दूसरों के साथ मुआवजा भी नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि हम किसी से अपना मुकाबला करें। हमारी अपनी एक अल्लाह के फजलों के अंदर मुनफरिद पोजीशन है जो पाकिस्तान की कौम जानती है। और इसलिए मैं उसी दर्द के हवाले से बात करता हूं कि बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावा देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं और आप हमारे साथ चले। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें, इसलिए हम अपना उन इत्तेहादी पार्टियों के साथ जो कि इस इलेक्शन के अंदर कामयाब हुई हैं, हम जरूर उनको दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ शराकत करें, हमारी हुकूमत हम मिलकर बनाएं और मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। मैंने ये जो मैं आपको हल बता रहा हूं ना, हल, क्या आप इस हल को मंजूर करते हैं? मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है,
کہ शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। आप मंजूर करते हैं? बोलो भाई। तो ये मैंडेट शहबाज साहब को मैंने दिया है और शहबाज साहब शरीफ साहब भी और इसहाक डार साहब इंशाल्लाह आज ही मुलाकात करेंगे पहली, और आप तक वो खबर पहुंचेगी और हम ऐसे काम करें कि इस आदमी को, इस सारे मजमे को, सारी कौम को बिजली का बिल अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। गैस का बिल अदा करके कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। पेट्रोल खरीदते वक्त अपनी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते वक्त कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। बच्चों के स्कूल की फीस अदा करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में आपके लिए बेहतरीन रोजगार होना चाहिए, खुशहाल। बस बस इंशाल्लाह रोशनियां फिर लौटेंगी इंशाल्लाह। बदअमनी का खात्मा होगा इंशाल्लाह, बेरोजगारी का खात्मा होगा, गरीब का चूल्हा जलेगा इंशाल्लाह, कौम की हालत बदलेगी इंशाल्लाह और कौम सुख का सांस ले सकेगी इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात दुनिया के साथ भी बेहतर हों, अपने हमसायों के साथ भी बेहतर हों। हम उनके साथ भी ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे और उनके साथ भी तमाम मसाइल हल करेंगे। बोलो, आपको ये मंजूर है एजेंडा? मंजूर है। अपनी पार्टी के लोगों को कहता हूं, यहां जीतकर बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग आए हुए हैं, यहां खड़े हैं, कोई MNA बना है, कोई MPA बना है, और मैं उनको कहता हूं कि मैं उन सबको मुबारकबाद देते हुए उन सबको ये कहता हूं कि अब सियासत इबादत समझ के करना, और खिदमत करना अपने अवाम की, अपने हल्के के अवाम की, अपने हल्के के अवाम के मसाइल को हल करना और बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत का भरपूर साथ देना। और इबादत समझ के सियासत करोगे